जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट. We will discuss about hydrogen bonding today. Our topic is hydrogen bonding. Intermolecular forces. Hydrogen bonding is a type of intermolecular force which is 20 times less stronger than covalent bond but more stronger than all intermolecular forces. So hydrogen, how would you define hydrogen bonding? Hydrogen bonding is a electrostatic force of attraction that is present between highly positive partial positive hydrogen and highly electronegative atom, that is known as hydrogen bonding. It also exists between two different molecules. Hydrogen of one molecule, partial positive hydrogen of one molecule attract the negative end of another molecule, that is known as hydrogen bonding. It is special force type of dipole. It is also comes under dipole force, but there hydrogen must be present here. In dipole forces there is no essential presence of hydrogen there, but here hydrogen must be present, and it is stronger than dipole forces, and its strength is less than 20% less than that of the covalent bond. Now what are the conditions for the hydrogen bond? There is a condition for the hydrogen bond. There must be present in a molecule partial positive hydrogen. There must be a partial positive hydrogen and highly electronegative atom. Now what happens, how the hydrogen bond is formed? For example, we deal with the example of water. This is water. Okay, this is water. We know that this oxygen is a electronegative atom, and it attract the electron, it attract the shared pair of electron toward itself. So जो है वो it get negative charge, partial negative charge, and it get partial positive charge, and so on. This hydrogen also get partial positive charge. In water, oxygen is partial negative, and hydrogen, two hydrogens are partial positive. When this जो है वो hydrogen, this negative charge, दिस नेगेटिव चार्ज जो है इट जो है वो क्रिएट मीन इट अट्रैक्ट द this shared pair of electron toward itself strongly. So here most electronegative atom की presence ज़रूरी है इसमें. ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रेजेंस ज़रूरी है. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अब इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है मैंने. ये कोवलेंट बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ये वाली लाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है. मैंने कहा कि वन मालिक्यूल, एक मालिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मालिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जब इंट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो उसको आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे. कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है, जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, तो वो मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. या आप कह लें कि यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन के स्मॉलर साइज़ की वजह से. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है. इस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है. बाज़ दफ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप डिफ़ाइन इस तरह से भी करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन partial positive hydrogen and lone pair of जो है वो electronegative atom, that is known as hydrogen bonding. एग्जाम्पल्स कौन सी है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर एग्जांपल जो है वो अमोनिया में, अमोनिया है मालिक्यूल, दिस इज NH3 इज़ द फार्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज आल्सो अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। जब इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तो वहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। हेयर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन। सो जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इट गेट जो है वो इट दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, this is get negative charge, this is positive and this is positive, this is positive, so it जो है वो develop this is another molecule of ammonia, this is positive, so positively charged hydrogen of one molecule and negatively charged nitrogen or lone pair attract each other, so जो है वो there is a development of one hydrogen bond between these two molecules। इसी तरह वाटर की एग्जांपल है। वाटर में क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो है वो इस वजह से एक जो है वो फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा। इसी तरह वाटर में है, वाटर में ये देखें कि जो है वो ये मॉलिक्यूल है वाटर का, इस पे जो है वो दो लॉन पेयर्स हैं, ये पॉजिटिव दो हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन का, वाटर का, यहाँ पे भी दो पॉजिटिव हैं, दो पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव है। अब क्या होता है, चूँकि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह से भी डिफाइन किया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन partial positive hydrogen and lone pair of electron, so here two lone pairs of electron are present, two lone pairs of electron are present, that's why जो है वो ये क्या है, ये हाइड्रोजन इंटरेक्ट विद दिस लॉन पेयर मीन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हाइड्रोजन इंटरेक्ट विद दिस लॉन पेयर, सो जो है वो पर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया में क्या था, एक हाइड्रोजन बॉन्ड था, जो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स क्या है, दो हाइड्रोजन, उनके दरमियान क्या है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह HF मैंने कहा व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन केस ऑफ HF में क्या होता है, HF में हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ऑल, जो है वो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव एंड दिस गेट पार्शियल पॉजिटिव, सो जो है वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये भी क्या होगा, ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है, ये क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इस तरह से जो है वो आपके पास इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, जिगजैग जो है वो स्ट्रक्चर होगा HF का, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड क्या करेगा, नेगेटिव एंड को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स के, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। इसी वजह से जो है वो HF इज़ वीकर एसिड, HF इज़ वीकर एसिड एज कंपेयर टू HCl, HBr and HI. Why it is weaker acid as compared to HCl, HBr, HI? Acid mean a strong acid mean that give hydrogen ion more, that easily जो है वो हाइड्रोजन आयन जो दे देता है, जो easily ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड, और जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देगा
उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है, वीकर एसिड है। HF में क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन इज इंट्रैप्ड बिटवीन, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बिटवीन टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान इंट्रैप होता है, जिसकी वजह से यहाँ से ये डिसोसिएट निकल नहीं सकता। इस वजह से ये हाइड्रोजन आयन कम देता है और इसकी डिसोसिएशन नहीं होती, हाइड्रोजन आयन कम देता है, जिसकी वजह से ये क्या है, वीकर एसिड है। ठीक है, इसी तरह जो है वो कहा जाता है H2O is in liquid state while H2S is in gaseous state. Why? Gaseous state can also be explained in terms of intermolecular forces on the basis of the strength of intermolecular forces. Water is in liquid state while H2S in definitely in liquid state mean there are more forces of attraction, and in gases mean there are less forces of attraction. In case of water, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, इन केस ऑफ H2S जो है वो क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट per molecule. In case of water, per molecule there are two hydrogen bond, there are greater number of hydrogen bonds, so greater number of hydrogen bond, greater number of attractive forces. So in case of water, greater due to greater number of hydrogen bonds, due to two number of bonds per molecule, greater intermolecular forces will be present in water, so water will exist in a liquid state, while in case of H2S, in case of H2S is in a liquid state because sulfur is less electronegative as compared to oxygen. So due to less electronegativity, here dipole forces are present, and dipole forces are weaker as compared to hydrogen bond, so it will in a gaseous state, so it will exist in a gaseous state. इसी तरह जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी प्रेजेंट बिटवीन एसीटोन, एसीटोन क्या है, एसीटोन का फार्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एंड क्लोरोफॉर्म तो आपने कल डिस्कस किया था, दिस इज़ जो है वो क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है। इसमें क्या होता है, दिस इज़ पॉजिटिव, वाई इट इज़ पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ जो है वो अटैच टू कार्बन दैट कैरीज 3 क्लोरीन 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस 3 क्लोरीन एटम मेक इट मोर पॉजिटिव, दैट्स वाई इट आल्सो विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गेट पॉजिटिव चार्ज, एंड हेयर दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज ड्यू टू इट्स electronegativity carries negative charge, and this carbon will get positive charge, and force of attraction present between this hydrogen and hydrogen of chloroform and oxygen of the acetone, this is known as a hydrogen bond, जो है वो hydrogen bond ये कहलाएगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेयर इट इज़ जो है वो इन क्लोरोफॉर्म में भी जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है, बिकॉज हेयर नॉट हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट हाइड्रोजन here carries positive charge due to binding due to attachment with this carbon that is again attached to 3 chlorine atom, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो खुद तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाउंड नहीं है, लेकिन क्या है कि वो ऐसे एटम के साथ बाउंड है जो आगे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाउंड है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या करते हैं, इसके जो शेयर्ड पेयर है इसको अपनी तरफ खींचते हैं स्ट्रांगली, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है,
ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूरी नहीं है सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट हो जहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच होती है, जैसे कि आपने HF में देखा, यहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। हाइड्रोजन इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन हेयर अटैच टू ऑक्सीजन। इन केस ऑफ NH3, hydrogen is attached to nitrogen. But in case of chloroform, hydrogen is not directly attached but indirectly जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है जी, है वो ये है इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग।